So again, good afternoon everyone, welcome back. So in the morning session we discussed about the stresses on biaxial system where normal stresses we have considered. Now along with the normal, if shear stresses also act, then how the oblique, what are the resultant normal and shear stress on the oblique plane we need to find out. So let us assume that a general stress system has got stress in the x direction. Now there will be stress in the x direction, let's say sigma x. There will be the complementary stress here, that is sigma x. Stress in the y direction, let's say assume it is sigma y, and the complementary stress is sigma y. Assuming that there is a shear stress in this particular direction, tau xy, so there will be complementary shear stress in the direction as tau xy. Assuming that there is a shear stress in this plane also, tau yx, basically both are equal, xy and yx, because their orientation is different, that is why we have taken tau xy and tau yx. Okay, this is the assumption, and according to this, all the stresses we will be assuming positive in our case, so that we will compare this is a standard case with any other problem which will be given. So in the problem, if the direction is reversed, we will take it negative. Okay, so now let us understand. We have considered let's say this is point B, AB, and on this particular plane C, I want to find out. Okay, I want to find out on this particular plane what is the, or else I'll keep this as. तो ये particular plane पे हमें find करना है. What is that? कि exactly कितना ये आएगा. Let us assume that the angle is theta. We'll take, this is the normal stress. Oh, sorry, yellow color दिखता नहीं है. This is the normal stress acting on this plane, sigma n, and this is the shear stress acting on this particular plane, tau. So we have assumed shear stress. So now what we need to do here is, any one side of the this one we can solve. Let us solve on the earlier this side of the stresses. For that we need to resolve all the forces, right? So resolution करना पड़ेगा. Let us try to resolve all of them. As this angle is given to me as theta, here you can see this angle is given to us as theta. If this is theta, where what are the different angles with respect to all this, we need to figure out, and then according to that we will be resolving. So let us resolve. If I resolve this particular sigma x, then it will be in the direction of normal stress like this, and it will be perpendicular like this. Okay, now can you tell me where the angle theta will be? Either angle, is this theta or how much is this angle? Theta, this one is theta. सिग्मा एक्स और वो व्हाइट वाले लाइन के बीच. This one. Yes, Yes, sir. This is it is theta. Right now, because if you take this is the Yes, sir. horizontal line, okay, तो यहाँ पे ये 90 minus theta होता है, right? So you will get this as theta. If this is theta, this will be sigma x. Cos theta. This will be sigma x. Sin theta. What about this shear stress? First of all, let us resolve this sigma x वाले terms. Now sigma y वाला भी यहाँ पे term resolve करेंगे. तो sigma y वाला जो term resolve होगा वो एक ऐसा होगा, and एक along this shear stress, right? Now tell me where the angle theta will be. This one, right? In the direction of the shear stress वाला है. हाँ, ये क्या होगा? Theta. हाँ sir. Theta. So sigma y cos theta, Cos. sigma y sin theta. Now to resolve, let us take some different color. Let's take yellow. Red लेते हैं. Okay, red. So see here, ये जो tau xy है ना, उसको resolve कर रहे हैं अभी. उसको resolve कैसे करेंगे? तो मैं अभी इसका resolution यहाँ पे लिखता हूँ. ये vertical है ना?
उसको रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू मतलब पैरेलल टू सिग्मा एन एंड एक कंपोनेंट होगा पैरेलल टू टाउ, राइट। सिमिलरली ये जो टाउ एक्स वाई है इसको भी रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर टू दिस, सो एक सॉरी टाउ एक्स वाई थोड़ा इधर लिखते हैं, I will write down tau x y here. Okay. So one component will be this way and one will be this way. Correct. Now tell me where this angle theta will be. ये केस में यहाँ पे एंगल कितना होगा? इधर थीटा theta, right ना? Because यहाँ पे देखो Yes, this is parallel. So if this is theta, this will be tau cos थीटा xy cos theta, and this will be tau xy sin theta. What about this force? इधर एंगल ये वाला थीटा होगा, राइट? ठीक है, तो ये होगा tau xy cos theta and this will be tau xy sin theta. Getting it? तो अभी हमें कौन से इन पे फोकस करना है? तो लेट मी यस सर मार्क देम ऑल ऑफ देम. तो हमें इस पे फोकस करना है, tau sin theta, ये वाला sin theta, ये वाला cos theta, this one, this sigma y, this sigma x, ये white वाले, ये इतने फोर्सेस पे फोकस करना है, बाकी सबको तो रिजल्ट किया हमने, राइट? वी आर सॉल्विंग ऑन द अदर साइड. सो अभी कैसे लिखेंगे? ये जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा ये नॉर्मल, देखो हम लोग फोर्स बैलेंस करते हैं ना, इक्विलिब्रियम में हम लोग स्ट्रेस बैलेंस नहीं करते. फोर्स क्या होता है? तो इट इज फोर्स इज स्ट्रेस इनटू एरिया. तो वो जो स्ट्रेस है मल्टीप्लाई बाय ऑन विच एरिया इट इज एक्टिंग, वो हमें लिखना पड़ेगा. तो अभी मैं सिग्मा एन की बात करूंगा, तो सिग्मा एन के वजह से जो फोर्स आएगा सिग्मा एन मल्टीप्लाई बाय ऑन विच एरिया इट इज एक्टिंग, ये पॉइंट BC. इट इज एक्टिंग ऑन बीसी मल्टीप्लाई बाय 1. वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम लोग हमेशा 1 लिखेंगे, तो बीसी मल्टीप्लाई बाय 1. आई होप सबको ये पता चला है. दिस इज स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया. ओके, ब्रैकेट नहीं लिखता हूँ, कंफ्यूजन होता है बार बार. हाँ, बीसी इंटू 1. हाँ, नेक्स्ट. अभी दिस इज इक्वल टू व्हाट? अभी ये डायरेक्शन में कितने फोर्सेस है? ये डायरेक्शन में ये खुद एक है सिग्मा एक्स कॉस थीटा, बराबर कि नहीं? यस सर हाँ, बट मुझे बताओ सिग्मा एक्स कौन सी डायरेक्शन पे एक्ट करता है? सिग्मा एक्स एक्ट्स ऑन एबी, राइट ना? एबी प्लेन पे ही एक्ट करता है ना सिग्मा एक्स. एबी इंटू 1. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ओके सर यस AB into 1. ये हो गया फोर्स into एरिया, बिकॉज आई एम राइटिंग सॉरी स्ट्रेस into एरिया, तो स्ट्रेस into एरिया सिग्मा एक्स. हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सिग्मा एक्स हो गया, उसके बाद सिग्मा एक्स cos थीटा हो गया, देन वी Yes. हैव tau Sigma xy sin theta, राइट? एक्स वाई sin थीटा tau xy sin थीटा. ये tau xy ये जो है वो कौन से प्लेन पे एक्ट कर रहा है? वो भी AB पे एक्ट करता है, बिकॉज tau xy एक्ट्स ऑन पैरेलल प्लेन. ये जो तुम्हारा tau xy उसका कंपोनेंट है, तो ये AB पे एक्ट करेगा ना, बिकॉज दिस इज इक्वल टू AB. आई विल बी राइटिंग डाउन दिस एज AB into 1. into 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, it is up to you. हाँ, ये हो गया एक कंपोनेंट, ठीक है. somebody कौन है ये? रोहित, म्यूट कर अपना. ओके फाइन. नाउ सी हियर, सर tau xy AC पे भी एक्ट हो रहा है, अगर ऊपर वाले लिखेंगे ना, डायरेक्शन जब में उसका देखो. कंपोनेंट लिखेंगे तो AC लिखेंगे. ओ. ओके, अभी मैंने ये वाला लिखा ना, तो ये सर, वाला वो ये XY प्लेन पे था, ये वाला ये प्लेन पे एक्ट कर रहा था ना. हाँ सर, वो XY लिखो YX लिखो एक ही होगा ना. एक ही बात है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉम्प्लीमेंट्री होता है. तो xy sin थीटा AB लिखा हमने. नाउ सी हियर दिस वन, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? प्लस tau xy, ये cos थीटा वाला कंपोनेंट है, एंड इट इज एक्टिंग ऑन विच प्लेन? तो वी विल राइट AC प्लेन, बिकॉज ये नीचे का जो पार्ट है वो AC के इक्वेटर है.
ओके, वो प्लेन पे इक्वल है। हाँ, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, सिग्मा वाई साइन थीटा, साइन थीटा। राइट। तो मैं इधर लिख रहा हूँ इसको, ये भी प्लस सिग्मा वाई साइन थीटा, बराबर ना, सिग्मा वाई साइन थीटा इंटू ए सी इंटू वन, ये भी ए सी इंटू वन। ये चार हो गए, देखो 1 2 3 4, ये चार सिग्मा एन के डायरेक्शन में। इसलिए अभी मैंने क्या की करना है कि ये सिग्मा एन को यहाँ पे रखना है। अभी सबको देखो, मैं ए बी बाई बी सी, सबको बी सी से डिवाइड करूंगा ना, सबको बी सी से डिवाइड करूंगा। नाउ टेल मी ए बी बाई बी सी क्या होता है, cos थीटा। कॉस थीटा। तो ये कॉस और कॉस क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर। कॉस स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, प्लस टाउ एक्स वाई, ए बी बाई बी सी कॉस थीटा होता है, तो ये sin हो थीटा जाएगा टाउ cos एक्स थीटा। वाई साइन थीटा कॉस थीटा, sin थीटा cos थीटा। प्लस इधर ए सी बाई बी सी क्या होता है, साइन थीटा ना, तो वापस sin से आएगा थीटा टाउ एक्स वाई sin स्क्वायर कॉस थीटा। थीटा साइन थीटा। ये वाला लिख रहा हूँ मैं, ये वाला। अभी बाद में लास्ट वाला ये लिखूंगा, ओके सर। प्लस सिग्मा वाई साइन थीटा तो ऑलरेडी है, और ए सी बाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, इफ आई सिंप्लीफाई दिस बिकम सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2xy। अच्छा, ये 2xy करेंगे तो देखो 2, ये अगर दोनों को ऐड किया तो कैन आई राइट डाउन इट इज टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। यस सर। यस ना, क्योंकि वो 2 एक्स सर वाई अपॉन 2 आएगा ना तो। अपॉन 2 नहीं आएगा ना, ये डबल है ना, ऐड करेंगे तो डबल हो जाएगा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 लेंगे हाँ तो हाँ हो हाँ। जाएगा टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा। आर वी गेटिंग दिस, सबको समझा यहाँ तक। अभी ना यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक यस रूल्स सर। यूज करके इसको हम लोग कुछ अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है? अगर मुझे cos 2 थीटा, एवरीबॉडी नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, cos square theta minus sin square theta. Sorry, cos 2 theta minus sin 2 theta. इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये है ना यस सर। फॉर्मूला। तो अगर मुझे cos 2 थीटा लाना है यहाँ पे ये इक्वेशन में, बिकॉज sin 2 थीटा ऑलरेडी है। ठीक है, व्हाई आई एम राइटिंग cos 2 थीटा, मैं क्यों लाना चाहता हूँ मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा ग्राफिकल मेथड के टाइम पे, बट स्टिल, बट अगर मुझे ये दोनों को रिप्लेस करके कुछ भी करके cos 2 थीटा का कंपोनेंट्स लाने हैं, तो व्हाट आई नीड टू डू, देखो मेरे को 2 cos स्क्वायर थीटा अगर होता मेरे पास तो मैं कुछ कर सकता था, बराबर ना। 2 cos स्क्वायर थीटा अगर मेरे पास होता तो मैं कुछ कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ, ये साइन जो है यहाँ पे, ये जो साइन है अकेला, ठीक है, मैं इसको क्या लिखूंगा, 1 माइनस cos के टर्म्स में। cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। हाँ हाँ, ओके। तो अगर मैंने इसको 1 माइनस cos स्क्वायर लिखा तो क्या चेंजेस हो जाएगा, लेट अस ट्राई टू राइट डाउन सिग्मा एन सिग्मा एक्स cos स्क्वायर थीटा, और एल्स व्हाट वी कैन डू, हम लोग यहाँ से एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं। लेट अस टेक, अगर ये ऐसा है तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, बराबर। तो व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, cos 2 थीटा प्लस 1/2। 1 प्लस cos 2 cos 2 थीटा थीटा प्लस 1/2। अपॉन 2, बराबर है। हाँ, so now I want to write down in terms of cos square theta, मैं ये लिखना चाहता हूँ। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एज इट इज, मैं लिखूंगा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा प्लस सिग्मा वाई। अब ये साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर, ओके, एंड cos स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, सर sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 भी लिख सकते हैं ना। वो भी चलेगा, यू कैन राइट डाउन दैट वे। मैं वही आता है बाद में 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, बराबर, दूसरे स्टेप में आने वाला था।
दोज हु नो मल्टीपल फॉर्मूले फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री उनके लिए ये फटाफट हो सकता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2. ओके, हाँ. तो अभी क्या करेंगे, ये सब हटा के अंदर मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं. तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स कॉस 2 थीटा बाई 2 प्लस ये तो एज इट इज टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा. बराबर है. अभी क्या करते हैं, ये cos 2 थीटा वाले जो टर्म्स है वो इनका एक साथ लेते हैं. तो क्या एंड ये जो इंडिविजुअल टर्म्स बचे उनको भी एक साथ लेते हैं. इंडिविजुअल टर्म्स कौन से बचे हैं, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 बराबर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2. देन ये दोनों में cos 2 थीटा कॉमन है ना, तो प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा. Have you understood this? Now this is our formula. अब ये फॉर्मूला ना हमारा पहले का जो तीनों जो हमने किया था उसके लिए भी एप्लीकेबल है. तो सबसे पहला केस देखोगे तो उसमें क्या था, उसमें ओनली सिग्मा एक्स था. तो सिग्मा वाई जीरो डालेंगे हम लोग यहाँ पे, टाउ एक्स वाई जीरो डालेंगे. तो क्या बचता है देखो, अगर सिग्मा वाई जीरो डाला तो क्या बचेगा, सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स बाई 2 कॉस 2 थीटा बराबर ना. तो वन कॉस ये बाहर निकालो सिग्मा एक्स को, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 दैट इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा. तो दैट वाज फर्स्ट फॉर्मूला. सेकंड वाला जो था जिसमें टाउ एक्स वाई नहीं था उसको टाउ एक्स वाई को जीरो डाल दो, बाकी इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वही आएगा सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा. ओके, एंड दिस इज द थर्ड वन. ठीक है, ये हमने ऐसे क्यों किया, बिकॉज ये मोर सर्कल में इसका यूज करेंगे हम लोग टू ड्रॉ द ग्राफिकल सॉल्यूशन. ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट, व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट, किसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, साइन कंपोनेंट के लिए लिख सकते हैं ना, सॉरी टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए. नाउ कैन यू राइट डाउन व्हाट इज टाउ इक्वल टू, ये टाउ इज इक्वल टू टाउ इनटू बीसी विल बी इक्वल टू व्हाट, ये डायरेक्शन में कौन से स्ट्रेसेस है, एक तो है सिग्मा एक्स साइन थीटा. सो आई विल राइट डाउन सिग्मा एक्स साइन थीटा एंड सिग्मा एक्स एक्ट्स ऑन एबी. सो देयरफॉर आई विल राइट एबी इनटू 1. अभी मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ. उसके बाद कौन सा आएगा, ये तो देखो ये डायरेक्शन में इसलिए मैंने ये को पॉजिटिव लिया. तो ये अपोजिट डायरेक्शन में वाला ये जो फोर्स है टाउ एक्स वाई कॉस थीटा वो नेगेटिव हो जाएगा. तो माइनस टाउ एक्स वाई कॉस थीटा एंड इट इज एक्टिंग ऑन once again AB, so it is AB. ठीक है, उसके बाद ये वाला तो ये प्लस टाउ एक्स वाई साइन थीटा बट दिस टाइम इट एक्ट्स ऑन AC. ओके, एंड द लास्ट वाला माइनस सिग्मा वाई कॉस थीटा एंड इट इज एक्टिंग ऑन सिग्मा वाई बोलेंगे तो इट विल एक्ट ऑन AC. ओके, तो अभी टाउ इक्वल टू कितना आएगा, जस्ट अ मिनट. हेलो, मतलब हैंड आउट ना बनाओ, पीडीएफ हो हो ते 6 प्रिंट करताना ना 6 स्लाइड्स पर पेज. हो हो, नाही तेवढं करायची गरज नाही, प्रिंट मध्ये जावा, पीपीटी ओपन करा. जस्ट मिनिट, लेक्चर चालू आहे.
ओके थैंक सॉरी फॉर द इंटरप्शन. नाउ BC से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज सी हियर AB अपॉन BC कितना होता है. AB अपॉन BC इज योर कॉस. ये हो जाएगा सिग्मा x sin थीटा इनटू cos थीटा बराबर है ना माइनस टाउ XY cos थीटा ऑलरेडी है. AB अपॉन BC होता है cos तो ये हो जाएगा टाउ XY cos स्क्वायर थीटा ठीक है प्लस टाउ XY sin AC अपॉन BC कितना होता है. AC अपॉन BC विल बी sin थीटा तो ये हो जाएगा टाउ XY sin स्क्वायर थीटा बराबर ना माइनस सिग्मा y AC अपॉन BC इज sin तो sin इनटू ये हो जाएगा sin थीटा cos थीटा. तो अभी देखो क्या क्या कॉमन है. तो अगर मैं सिग्मा x माइनस सिग्मा y कॉमन लेता हूँ सिग्मा x माइनस सिग्मा y कॉमन लेके तो बचेगा क्या sin थीटा cos थीटा ये दोनों में से मैंने कॉमन लिया sin थीटा cos थीटा. तो मैं कैन आई राइट डायरेक्टली एज sin 2 थीटा अपॉन में 2 लिख दो इसके हो गया ना वो एक साथ. और इसमें ये दोनों में क्या कॉमन है. अगर मैंने माइनस कॉमन लिया टाउ XY तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. नाउ इफ यू नो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है थीटा cos टू थीटा. वेरी गुड. तो देखो सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाय 2 sin 2 थीटा माइनस टाउ XY cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट. ये क्या है. दिस इज शियर स्ट्रेस ऑन एनी ऑब्लिक प्लेन राइट. तो देखो ये दोनों फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा हमें टू कैलकुलेट शियर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस ऑन एनी ऑब्लिक प्लेन. अभी ये फॉर्मूला याद करना बहुत सिंपल हो गया ये ब्रैकेट्स में लाने की वजह से बिकॉज पहले क्या है सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाय 2 देन सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाय 2 cos 2 थीटा एंड प्लस टाउ x और sin 2 थीटा. अभी ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला और नीचे वाले फॉर्मूला में क्या चेंज होता है तो ये पहला टर्म निकल जाएगा और खाली cos का sin हो जाएगा sin का cos और sin चेंज. तो सी यार सिग्मा x माइनस वो ब्रैकेट एज इट इज है यहाँ पे cos है इधर sin हो गया ये प्लस है ये माइनस हो गया और ये sin है इधर cos हो गया right. Now it is easy to remember. Did you understand this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let us figure out where the shear stress is going to be maximum and what are the locations of principal planes. How we will understand. Okay. तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ अभी. Let us first go for location of principal planes. Location of principal planes. लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन कैसे मिलेगा हमें. प्रिंसिपल प्लेन को क्या होता है. व्हाट इज प्रिंसिपल प्लेन. The plane on which the normal stress acts and there is no tau. मतलब फॉर द लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन माय शियर स्ट्रेस मस्ट बी व्हाट 0. 0 ना. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर माय शियर स्ट्रेस. क्या फॉर्मूला है. सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाय 2 इनटू y upon 2 sin 2 theta minus. मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाय 2 इनटू sin 2 Tan 2 थीटा theta. Sin 2 theta माइनस minus pi 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 x pi. cos 2 थीटा इक्वल टू 0. अगर मैं इक्वल टू के उस साइड भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा. ये सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाय 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू टाउ XY cos 2 थीटा. अब ये sin अपॉन cos हो गया तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट 2 टाउ XY अपॉन सिग्मा x माइनस सिग्मा y बराबर है. अगर ये इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया मतलब tan इनवर्स करके 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू एंड इफ आई गेट द वैल्यूज ऑफ थीटा दो वैल्यूज आएंगे बराबर ना. जो पहला वैल्यू आएगा वो होगा मेरा थीटा 1 एंड जो दूसरा वैल्यू आएगा वो क्या रहेगा थीटा 1 प्लस 90 डिग्री बराबर है. ये जो आएगा उसको मैं बोलूंगा मेजर प्रिंसिपल प्लेन एंड दिस विल बी आई विल बी कॉलिंग एज दैट माइनर प्रिंसिपल प्लेन P1 एंड P2. Have you understand? Are you understanding this? Yes, sir. ये तो हो गया लोकेशन. How to get the location? तो by using this formula tan 2 theta is equal to. But how will you get the maximum principal stress value? So the principal stresses कैसे मिलेंगे हमें. Principal
stress or stresses P1 and P2. अच्छा ये plane था. You can call it as P1 P2 also, and this is plane 1 and this is plane 2. Theta 1 theta 2. These are the angles. Now how will you get P1 and P2 values? The maximum principal major and minor principal stresses. तो वो कैसे मिलेगा? तो मुझे पता है कि वो ये जो वैल्यूज आने वाले हैं P1 P2 ये पर्टिकुलर एंगल पे होने वाले हैं. Are you getting it? And what is principal stress? What is principal stress? मीनिंग नहीं भूलने का, तो अदरवाइज कंफ्यूज हो गए. What is principal stress? Principal stress is the value of normal stress at that plane जहाँ पे टाउ जीरो है. तो टाउ कहाँ पे जीरो है? तो टाउ जीरो है ये कंडीशन पे, राइट ना. दिस इज व्हाट वी हैव फिगर्ड आउट. तो ये कंडीशन अगर मैं नॉर्मल स्ट्रेस के इसमें डालता हूँ, ये मेरा नॉर्मल स्ट्रेस है, मेरा जो टाउ जीरो वाला कंडीशन है अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, ये इक्वेशन ए में पुट करता हूँ, तो मुझे जो नॉर्मल स्ट्रेसेस का वैल्यूज मिलेगा वो मेरा क्या होगा? प्रिंसिपल स्ट्रेस. Principal stress. Is it not? बराबर. So therefore what I'm going to do is therefore substituting, let us take this as equation C, substituting equation C in equation A. So therefore अगर tan 2 theta का वैल्यू ये पुट किया, मेरा इक्वेशन C क्या है? सिग्मा n इक्वल टू ना, so I'll be writing sigma n normal stress will be equal to, what is that formula I have? It is sigma x plus sigma y by 2 plus sigma x minus sigma y by 2 into what? Cos 2 theta. Cos 2 theta plus Tau tau xy xy sin 2 theta. sin 2 theta. तो अभी कैसे पुट करेंगे? Any idea? How can we put this? So let us take corresponding to this. Let us take a triangle, rectangular triangle लेते हैं, right angle triangle, sorry. एक right angle triangle लिया. Assume करता हूँ कि ये angle मेरा 2 theta है. Assume कर रहा हूँ मैं, कोई भी एक right angle triangle, imaginary triangle, and I have assumed that the angle is 2 theta from here. So अगर ये angle 2 theta है, tan theta का value ये आता है. Tan मतलब क्या होता है? Adjacent and opposite. तो मुझे बताओ opposite side ये क्या होगा? This side will be 2xy and adjacent side क्या होगा? Sigma x minus sigma y. Sigma. So can you tell me what will be the hypotenuse? Root of sigma x minus sigma y the whole square plus 2 tau xy the whole square. बराबर है? Is it not? Yes. Yes, sir. करेक्ट है ना. मैंने एक इमेजिनरी ट्रायंगल लिया, tan 2 थीटा, tan और ये सब ट्रायंगल से बनते हैं ना, बिकॉज़ tan इज अपोजिट अपन एडजेसेंट. तो मैंने एक ट्रायंगल लिया जिसका अपोजिट साइड 2xy है, एडजेसेंट साइड सिग्मा x माइनस सिग्मा है, तो उसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा? ये होगा. नाउ फ्रॉम दिस ट्रायंगल कैन आई गेट द वैल्यू ऑफ sin थीटा, sin 2 थीटा एंड cos 2 थीटा? बराबर. कैन आई गेट द वैल्यूज? ऑफ कोर्स. Yes, sir. तो वही तो वैल्यूज मुझे यहाँ पे पुट करना है ना. So let us substitute now. So sigma x plus sigma y by 2 plus sigma x minus sigma y by 2. What is cos 2 theta value? Cos is opposite upon adjacent upon Adjacent. hypotenuse. तो adjacent side क्या है मेरा? Sigma X minus sigma y. Minus sigma y. बराबर. Upon under root of sigma x minus sigma y the whole square अंडर रूट plus वाला जो भी है मैं ऐसे ही रखता हूँ, अंडर रूट वाला टर्म, पूरा टर्म मैं लिख नहीं रहा हूँ, उसको बार बार लिखना पड़ेगा. टाउ एक्स वाई इंटू साइन 2 थीटा क्या है? 2 tau x 2 टाउ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट वाला टर्म. बराबर. Yes, sir. हाँ ठीक है, चलो तुमको इतना तो आ गया. नाउ टेल मी ये टर्म और ये टर्म में डिनोमिनेटर क्या है? Under root. अंडर रूट वाला टर्म और ये 2 भी है यहाँ पे, बराबर है ना. तो अगर मैं ये दोनों का एडिशन करना चाहता हूँ तो मुझे डिनोमिनेटर में इधर 2 है तो इधर मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर ना. तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको और एक 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इधर 2 से मल्टीप्लाई. नाउ ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया. Yes, sir. तो अभी मैं ऐड कर सकता हूँ हाँ. सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस, अभी ये दोनों को ऐड करूंगा, ये है मेरा सिग्मा x, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा सिग्मा x माइनस सिग्मा y द Whole square. होल स्क्वायर प्लस, मुझे बताओ 2 into टाउ एक्स वाई, दिस इज नथिंग बट 2 टाउ एक्स वाई द होल स्क्वायर, राइट.
Yes. अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? 2 2 into under ब्रैकेट वाला टर्म. What is the bracket वाला टर्म? It is nothing but sigma x minus sigma y whole square plus 2 tau xy the whole square, right? तो ऊपर उसका स्क्वायर है और नीचे ब्रैकेट है, तो ये पूरा ब्रैकेट ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, बराबर कि नहीं? Yes sir, root बचेगा. रूट में है वो, और ऊपर मतलब एज इफ इट इज a by root a, बराबर ना? आंसर क्या आता है? Root A. मतलब क्या आएगा इसका आंसर? Root और अंदर आंसर वाला आएगा सिग्मा x प्लस सिग्मा y by 2 प्लस 1 by 2 एज इट इज रूट ऑफ सिग्मा x minus sigma y the whole square plus 2 tau xy the whole square, बराबर? Yes sir. Did you understand? हाँ. Yes. अभी एक मिनट. इसमें हमने एक assumption किया. हाँ. तो अभी जब हम लोग ऐसा ये सॉल्व करते हैं, ठीक है, मतलब एक रूट को कैंसिल कर रहे हैं, व्हेन वी आर डूइंग दिस, वो एक रूट को जब मैं कैंसिल करता हूँ तो बेसिकली ए का स्क्वायर रूट लिया ना मैंने, बट ए का स्क्वायर रूट आ सकता है प्लस माइनस रूट ए, बराबर कि नहीं? ये ऐसा लिखना चाहिए ना मुझे. अगर मेरा ए है तो आई शुड हैव रिटन व्हेन आई कैंसिल आउट इट कैन बी माइनस रूट ए में भी पॉसिबल था वैल्यू. आई वाज हैविंग अ प्लस वैल्यू एज वेल एज अ माइनस वैल्यू. ठीक है, जब हम लोग कैंसिलेशन कर रहे हैं तो स्क्वायर कर रहे थे ना, ठीक है, तो इन दैट केस यहाँ पे प्लस के साथ माइनस वैल्यू भी रहेगा, तो देयरफॉर मुझे यहाँ पे दो वैल्यूज मिलेंगे, एक है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस एंड एक है माइनस. यहाँ पे मुझे हर जगह पे आई नीड टू गेट टू वैल्यूज. या ऐसा क्यों आया मैं बताता हूँ तुमको. देखो पाइथागोरस क्या बोलता है मुझे यहाँ पे कि अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है, तो ये साइड सी, इसका साइड कितना होगा रूट सी, बट रूट सी का रूट लेते वक्त आइदर आई शुड टेक प्लस और माइनस रूट, बराबर कि नहीं? तो मुझे यहाँ पे ये जो रूट मैंने लिखे हैं यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते वक्त यहाँ पे नहीं आएगा, प्लस साइन ही रहेगा, बट इधर मेरा ये रूट के साथ नेगेटिव साइन भी आएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मेरा पाइथागोरस है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इक्वल टू सी स्क्वायर, तो जब मैं रूट ऑफ सी लेता हूँ वो हाइपोटेनस के लिए, तो रूट ऑफ सी कैन बी प्लस माइनस रूट सी, राइट? बराबर ना? बराबर कि नहीं? Yes, sir. Yes sir. होना ही चाहिए प्लस माइनस, कोई पॉसिबिलिटी है उधर. तो देयरफॉर मैंने ये प्लस माइनस साइन लिया यहाँ पे, ये भी प्लस माइनस रहेगा एंड ये देयरफॉर दिस इज. तो जब तुम एक प्लस डालोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा एक वैल्यू जो होगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और जब तुम माइनस डालोगे तो ऑफ कोर्स वो वैल्यू कम हो जाएगा व्हिच इज माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस. So P1 and P2 these are the principal stress values which you are getting at a plane which is given by this equation. कौन से प्लेन पे मिलेगा? तो ये प्लेन के इक्वेशन पे मिलेगा. Getting it? Yes sir. Just a minute. Okay, so have you understood this particular part? So here in this particular case we have solved for location of principal planes. Okay, now अगर मुझे principal planes पता है, now I can also find out the location of shear plane, maximum shear stress plane, right? Now let us go for location of plane of maximum shear stress. How will you find out the location of maximum shear stress plane? So maximum shear stress plane will be at where the condition of d tau by d theta is equal to 0 होता है. लेकिन मेरा टाउ का इक्वेशन क्या है? मेरा टाउ का इक्वेशन जो मैंने पहले इसमें लिखा था, इट इज sigma x minus sigma y. I'll write down that way. So it is derivative of sigma x minus sigma y by 2, I'm not recollecting, into sin 2 theta minus tau xy into cos 2 theta. अभी इसका डेरिवेटिव मुझे करना है, राइट? इसका डेरिवेटिव करना है. तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? ये तो सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाय 2 एज इट इज बचेगा. साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा, क्या होता है? cos 2 2 theta. theta into 2 माइनस टाउ xy एज इट इज. cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस minus sin 2 theta. sin 2 theta Sin into 2 theta. minus sin 2 theta into 2.
हाँ ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड वो उधर चला जाएगा, राइट। ये 2 मैं कैंसिल कर देता हूँ, बराबर, माइनस माइनस प्लस होके उधर जाएगा, तो व्हाट आई एम राइटिंग इज सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 इंटू cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ टाउ एक्स वाई इंटू साइन 2 थीटा, राइट। ये उधर गया, बट अगर ये माइनस साइन को एडजस्ट करना है तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ। आई कैन राइट डाउन दिस एज सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाय 2 into cos 2 theta is equal to tau xy into sin 2 theta. Now sin upon cos will be tan, so this time the tan 2 theta will be equal to sigma y, sigma y minus sigma x upon 2 tau xy. समझा चेंजेस क्या आ रहा है? सो आपने वापस सिग्मा y माइनस सिग्मा y लिखा, sigma y minus sigma x upon 2 tau xy. Getting it? Now this is the location where you will get let's say मैं पहले वाले इक्वेशंस को नंबर देना भूल गया। c के बाद ये हमारा इक्वेशन d था, उसके बाद ये हमारा इक्वेशन e है जो हमें देगा मैक्सिमम शेयर प्लेन का लोकेशन। एंड अगर तुम्हें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वैल्यू चाहिए तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का वैल्यू दैट इज टाउ मैक्सिमम। तो टाउ मैक्सिमम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू tan 2 थीटा का उसमें पुट करना पड़ेगा, लेकिन tan 2 थीटा का वैल्यू हम लोग पुट नहीं कर सकते, तो वापस से मैं क्या ले सकता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ पे ये एंगल मैं 2 थीटा अज्यूम करता हूँ। अभी अपोजिट साइड मेरा है सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स और एडजेसेंट साइड मेरा है 2 टाउ एक्स वाई, तो मेरा हाइपोटेनस क्या होगा प्लस माइनस। अभी इसको मैं सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई लिखूँ या सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स लिखूँ, बिकॉज स्क्वायर करने पे वो सेम ही होता है, इसके लिए मैं स्क्वायर के अंदर ऐसा लिख रहा हूँ प्लस 2 tau xy the whole square. I hope now you understand this. So अभी cos 2 थीटा का मेरा tau का वैल्यू क्या है, मेरा सिग्मा x minus sigma y by 2 into what is sin 2 theta, sin of this triangle. So sin of this is nothing but sigma y minus सिग्मा sigma y x, माइनस right ना, उल्टा है ये sigma y by sigma x upon the root, बट उसके साथ ये प्लस माइनस साइन भी आएगा, ठीक है। और ये माइनस टाउ एक्स वाई, सॉरी टाउ एक्स वाई इंटू व्हाट इज दैट cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का वैल्यू क्या आएगा 2 टाउ एक्स 2 वाई टाउ एक्स वाई अपॉन प्लस माइनस द रूट वाला टर्म, पूरा रूट वाला टर्म, बराबर है। हाँ अभी देखो इसमें अगर मैंने अभी देखो यहाँ पे प्लस माइनस ऑलरेडी है, तो इसका माइनस साइन मैं कॉमन निकालूंगा, तो आई विल गेट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई द होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू प्लस माइनस मैंने क्या किया मैंने, हाँ ये माइनस है, ये प्लस माइनस चेंज होके ओके फाइन, हाँ ये माइनस है। अगर मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो इधर एक मिनट चेंज करता हूँ, इधर ओके, सो इनटू रूट ऑफ द एंटायर टर्म, और इधर अगर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा 2 से, तो इधर 2 से ये करूंगा मैं, और मैं एक साथ लिखूंगा अभी, ठीक है। ये मैंने सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई लिखा प्लस 2 टाउ एक्स वाई द होल स्क्वायर। अभी एक ब्रैकेट ऊपर के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड आई विल बी लेफ्ट आउट विथ प्लस माइनस 1/2 रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई द होल स्क्वायर प्लस 2 टाउ एक्स वाई द होल स्क्वायर। नाउ दिस इज योर सर टाउ ऊपर वो मैक्सिमम। माइनस बाहर लिया तो सर वो कौन सा माइनस? सर वो जो ये सिग्मा माइनस वाई ना, माइनस सिग्मा, हाँ सर उसका वो माइनस हाँ नहीं ये माइनस है, ये माइनस बाहर लिया, इसका भी माइनस है ना, दोनों माइनस बाहर लिया, प्लस माइनस है ही ना, वैसे भी एक वैल्यू माइनस रहेगा, एक वैल्यू माइनस रहेगा। सर, तो फिर वो माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस माइनस का। कौन सा? हाँ लेकिन कॉमन निकालोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, ऐसे भी करो क्या आने वाला है। ओके, so this is your f. So how many equations you have to remember for getting complete problem solved? A B C D E F, A B C D E F 6 होता है। Getting it?
This equation सर gives you ये the maximum इक्वेशन में मिस्टेक है, tan 2 थीटा होना चाहिए, tan थीटा लिखा है। इधर हाँ अच्छा लिखने में मिस्टेक है क्या? हाँ। ओके अंडरस्टूड. नाउ लेट अस गो फॉर अभी अगर इक्वेशन नहीं लिखने हैं इतने नहीं लिखना है हमको इक्वेशन लिखना है तो व्हाट इज द अदर मेथड हाउ वी कैन कैलकुलेट एवरीथिंग बाय यूजिंग अ मोर सर्कल मेथड. ओके so is there anyone who knows or remembers the Moore circle method? So you can share your knowledge. Yes Tushar, anyone बेसिकली व्हाट हाँ सो सर मोर सर्कल में हमने उस टाइम क्या किया था कि लाइक वी जस्ट यूज्ड वेक्टर ऑन अ सर्कल to Okay. depict all these to depict the stress and strain values. okay but have you understood the And ये क्यों कर रहे थे मोर सर्कल हम लोग तो टाइम पे? some more वो circle हम टोटल इसलिए एक कर रहे थे टाइम में करते हैं वो। formulas. हाँ मतलब using all the components in xy direction हम easily convert कर देते थे ताकि सिर्फ दो डायरेक्शन मतलब in two direction रहे forces या जो stresses जो थे वेक्ट अपना रहे एंड उससे इजीली मतलब हम सॉल्व कर सकते थे कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग सो मेनी रिमेम्बरिंग सो मेनी फॉर्मूलाज हम उसको नॉर्मली वेक्टर से कर सकते थे. ओके साइन कन्वेंशन एक्स एंड वाई एक्सिस का जो एफ में पढ़े थे वो यूज करते हैं। हाँ ठीक है. अच्छा तो पता है कैसे मोर सर्कल ड्रॉ करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर केस? अभी हमने ये सेम प्रॉब्लम अगर मैंने अभी दे तो ये से सॉल्व किया ना ट्रिग्नोमेट्री से बाय यूजिंग दिस इक्वेशंस एनालिटिकली वी हैव सॉल्व्ड. सो हाउ विल यू सॉल्व इट बाय ग्राफिकली? एनी आइडिया कहाँ से स्टार्ट करोगे? तो सबसे पहले दो सर्कल ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम स्ट्रेस एंड मैक्सिमम स्ट्रेन वैल्यूज. किधर दिया है वैल्यू इसमें? नहीं दिया है ना वैल्यू? तो सर सिंपल एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनाएंगे जैसे ग्राफ में हाँ, बनाते okay. हैं एक्स वाई एक्सिस. Okay, very good, very good. So you are on right track. So tell me, अच्छा कितने लोग हैं अभी फिलहाल? 80. Fine. So now let us slowly. Okay, fine. कुछ point miss out होने से अच्छा मैं पूरा complete करता हूँ and then you can tell me if you have any doubt. Okay, done. See here. So now how we can do? So the same thing can be expressed graphically, and that was explained by Moore. And we draw. Everything can be calculated by using a circle. By using a circle, all these stress values at any plane we can calculate by using a circle, and that the method he gave, that is Moore circle method, we are going to study. But in which there are some sign conventions which we need to follow. Okay, there are some sign conventions which we need to follow. तो वो sign convention मैं बताते जाऊँगा कैसे draw करने का. See here. Moore's circle method. So in Moore circle method, basically हमारे पास दो axis होते हैं. In Moore circle method दो axis होते हैं, horizontal axis and vertical axis. That is x axis and y axis. In Moore circle, the x axis is nothing but the direct stress or the normal stress, and on y axis there is shear stress. Okay, यहाँ पे sigma x sigma y ऐसा कुछ नहीं होता. इधर डायरेक्ट स्ट्रेस के लिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और वर्टिकल एक्सिस जो है वो किसके लिए? शियर स्ट्रेस के लिए. ओके तो सबसे पहले अगर हमारे पास कोई केस गिवन है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी जो केस लिया था वही केस मैं वापस से यहाँ पे लेता हूँ, एंड वो केस के लिए मैं मोर सर्कल कैसे बनाऊंगा, एंड ऑन विच प्लेन व्हाट आर द थिंग्स आई एम गोइंग टू गेट, हाउ टू मेजर देम, एवरीथिंग आई विल डिस्कस. ओके सो लेट मी टेक एग्जांपल. So let's say I have a stress system in which I have sigma x, sigma y, okay, this is I have tau xy, yx लिखो तो भी चलेगा. ओके हाँ तो वेरी फर्स्ट थिंग व्हेनेवर वी हैव दिस काइंड ऑफ सिस्टम, हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा बड़ा है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई में से, अज्यूमिंग दैट कि सिग्मा एक्स हमारा बड़ा है, जो भी है बड़ा. अभी क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई एक दो एक्सिस बनाएंगे. सो दो एक्सिस, सॉरी
let me take the axis from so let's say this is my x-axis and same way I have y-axis as well. Okay, x and y axis है. अच्छा, are you able to see this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, थोड़ा बड़ा करता हूँ. Fine. So we have x-axis and y-axis. अभी ये जो x-axis पे मेरा ये है, x-axis पे I'll be writing sigma n normal stress and on y-axis I'll be writing tau. तो मुझे बताओ मेरे डायग्राम में मेरे पास कितने नॉर्मल स्ट्रेस है? 2 है, सिग्मा x और सिग्मा y. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो भी मेजर करेंगे पहले ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे. What you do is you have to start with origin. Start with origin. This as I'll keep as 0 mark. ठीक है, सिग्मा x का जो भी वैल्यू होगा, फॉर एग्जांपल लेट्स से सिग्मा x है 100 MPa. कितना है सिग्मा x का वैल्यू? 100 MPa. तो मैं क्या करूंगा, मेरे ग्राफ पे स्केल लूंगा. ग्राफिकल सॉल्यूशन में तुम्हें स्केल लेना पड़ता है, तुमको पता रहेगा ये. तो स्केल लूंगा. स्केल लेट्स से मैंने लिया कि 10 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 MPa. इतना स्केल है 1. तो अगर मेरा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 MPa स्केल है तो मेरा 100 MPa के लिए 10 सेंटीमीटर आएगा, राइट? तो मैं यहाँ पे कोई तो एक पॉइंट मार्क करूंगा एंड दैट पॉइंट आई विल कॉल एज ए पॉइंट. तो ओ ए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दैट पॉइंट आई विल मार्क एज ए पॉइंट. एंड ओ ए जो डिस्टेंस है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? सिग्मा एक्स. क्या रिप्रेजेंट करेगा? सिग्मा एक्स. ओके, सो लेट मी ड्रॉ दैट. यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा मेरे लिए? सिग्मा एक्स. बराबर. सिमिलरली सिग्मा वाई भी मैं प्लॉट कर सकता हूँ ओरिजिन से. अभी मैं ओरिजिन से ये साइड पे क्यों प्लॉट कर रहा हूँ? बिकॉज आई नो दैट कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के हिसाब से ओरिजिन से लेफ्ट साइड में क्या होता है, राइट साइड में क्या होता है? पॉजिटिव. एंड लेफ्ट साइड जब जाओगे तो क्या होगा? Negative. नेगेटिव. तो अगर मेरा सिग्मा वाई नेगेटिव होता तो वेयर आई वुड प्लॉट माय पॉइंट बी ऑन द अदर साइड. ओके, समझा ना? मतलब कंप्रेसिव टेंसाइल का तुम्हें समझ में आ रहा है, राइट? अगर अभी दोनों पॉजिटिव है इसलिए मैं दोनों राइट हैंड साइड पे प्लॉट करूंगा, अदरवाइज आई विल गो टू द अदर साइड ऑफ द ओरिजिन. ओके, अभी ये मेरे केस में कि हमने दोनों पॉजिटिव लिया है, तो देयरफॉर मैं अभी पॉइंट बी इधर ही ले लेता हूँ. ओके, सो लेट्स से मैं पॉइंट बी यहाँ पे ले रहा हूँ. तो ये है मेरा पॉइंट बी और ये जो डिस्टेंस है ओ बी, वो डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा सिग्मा वाई. सिग्मा बी का वैल्यू, सिग्मा वाई का वैल्यू. ओके, सिग्मा वाई का वैल्यू. नाउ व्हाट वी नीड टू डू? उसके बाद हमें चेक करना है कि व्हाट इज द शियर स्ट्रेस वी हैव. व्हाट इज द शियर स्ट्रेस वी हैव? तो शियर स्ट्रेस कौन से एक्सिस पे प्लॉट करते हैं हम लोग? वाई एक्सिस पे. बराबर ना? यस सर. हाँ, तो just a minute, getting it. Okay, coming back. Fine, sorry. So we have A point and B point. A point पे हमने खाली दो ही स्ट्रेस प्लॉट किया, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, अकॉर्डिंग टू द वॉट एवर वैल्यूज वी हैव स्केल के हिसाब से. नाउ सेम स्केल हम लोग वाई पे भी यूज करेंगे, टाउ. तो अभी ये टाउ का जो ये है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट बी से we will plot whatever the tau xy value, assuming that ये पॉजिटिव केस हमने assume किया है. तो therefore tau xy का वैल्यू लेट्स से अगर 50 है तो 50 के अक्रॉस कितना वैल्यू आता है? तो हम लोग क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस टेस्ट है, इसके लिए आई विल बी ड्रॉइंग बी से, सॉरी कंट्रोल सेट, आई विल बी ड्रॉइंग एक स्ट्रेट लाइन में बी से चालू करूंगा. क्यों में आ रहा है? हाँ, बी से जितना भी उसका वैल्यू है 50, अगर वो 50 है तो 50 और उतना ही सेम वैल्यू में ए से नीचे की तरफ ड्रॉ करूँ. कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, राइट? आई विल टेक दिस वे.
ठीक है, ये कितना हाइट लिया मैंने, ये पॉइंट मुझे सी और डी पॉइंट देगा. लेट्स से आई विल नेम दीस पॉइंट्स एज C and this point as D. एक बार मुझे ये पॉइंट मिल गया C और D, ठीक है. देन व्हाट आई नीड टू डू इज, अभी तक तो सबको समझा क्या मैंने क्या क्या किया. shear stress प्लॉट किया along the y axis from point A and B. then what I'll do, I will join C and D. मैं क्या करूंगा, अभी ज्वाइन करूंगा एक वैसे सेम स्ट्रेट लाइन आई विल टेक एंड आई विल ज्वाइन पॉइंट D से लेके पॉइंट C तक ज्वाइन करूंगा. ठीक है, अगर ज्वाइन करूंगा तो इट विल इंटरसेक्ट समवेयर. एज यू नो ये इंटरसेक्ट करेगा, ये जो इंटरसेक्शन है उसी को मैं लिखूंगा E एंड दैट इज द सेंटर ऑफ माय मोर सर्कल. दिस इज द सेंटर ऑफ माय मोर सर्कल. अभी इसको सेंटर पकड़ते हुए मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा. ठीक है, अभी मैं सर्कल ड्रॉ बनाने का ट्राई करता हूँ. इसको सेंटर पकड़ के मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा. अभी मेरा सर्कल थोड़ा ऑफबीट जाने वाला है बिकॉज आई एम नॉट डूइंग. ओके, getting it. So I have a circle here. तो एक सर्कल बना दिया मैंने, सर्कल सच दैट ई सेंटर था और एक EC मेरा रेडियस था या ED मेरा रेडियस था एंड पूरा सर्कल बना दिया. ना ये सर्कल को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस सर्कल इटसेल्फ विल बी कॉल्ड एज मोर सर्कल. दिस सर्कल विल बी कॉल्ड एज मोर सर्कल. नाउ ये सर्कल देखो दो पॉइंट्स पे एक्सिस को कट करता है, दो पॉइंट्स पे. एक है ये पॉइंट, एक है दूसरा पॉइंट. ओके, अगर तुमने डिस्टेंस, ये दो पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ये दो वैल्यूज, ये दो पॉइंट्स हमें देंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस वैल्यूज. क्या देंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस वैल्यूज. हाउ, लेट्स सी. देखो अगर मैंने ये मेजरमेंट किया, इफ आई टेक दिस डिस्टेंस और यहाँ से ये मेरा जो ओरिजिन एक्सिस है, यहाँ से अगर मैं इधर तक का डिस्टेंस मेजर करता हूँ, कौन सा डिस्टेंस, ये जो मेरा पॉइंट P है ना यहाँ पे इधर तक का. इफ आई एम गोइंग टू मेजर दिस डिस्टेंस, राइट, तो ये डिस्टेंस मुझे क्या देगा, दिस डिस्टेंस विल गिव मी द P1 वैल्यू, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस. एंड वही अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक मेजर किया तो इट विल गिव मी व्हाट, P2 वैल्यू. नाउ दिस P1 इज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, right, and what is this, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस. बराबर, सबको समझा कैसे आया मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस. क्या किया हमने, वापस एक बार रिपीट करेंगे. मैंने पहले क्या किया, सिग्मा एक्स प्लॉट किया पॉइंट ए पे, सिग्मा बी वाई प्लॉट किया पॉइंट बी पे, देन टाउ एक्स वाई जो दिया था वो प्लॉट किया, जितना हाइट ऊपर है उतना उतना नीचे लिया, देन CD को ज्वाइन किया, पॉइंट E मिला, उससे वो सेंटर लेके और D को रेडियस लेके एंड आई विल हैव ड्रॉन द मोर सर्कल. मोर सर्कल तुम्हारे एक्स एक्सिस को या हॉरिजॉन्टल एक्सिस को डायरेक्ट स्ट्रेस पे दो जगह कट करता है. नाउ व्हाई दिस सिग्मा, ये मेरा प्रिंसिपल स्ट्रेस क्यों है, तो डेफिनेशन देखो प्रिंसिपल स्ट्रेस का क्या है. क्या है डेफिनेशन प्रिंसिपल स्ट्रेस का, कि ऐसा स्ट्रेस मतलब ऐसा प्लेन जहाँ पे शियर स्ट्रेस 0 है. तो देखो ये जो मैंने दो पॉइंट्स लिए, लेट्स से आई एम कॉलिंग दिस एज पॉइंट X एंड दिस एज पॉइंट कैपिटल Y. ये पॉइंट X एक्सिस पे है तो उसका Y कोऑर्डिनेट क्या है, 0, और Y कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पे है शियर स्ट्रेस. तो ये पॉइंट पे शियर स्ट्रेस कितना है, 0. ये पॉइंट पे कितना है स्ट्रेस, 0. दैट इज व्हाई दीस आर प्रिंसिपल प्लेन्स, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, समझा क्या. हाँ, ओके. अभी ये तो ठीक है, चलो सर आपने बता दिया कि P1 P2 का स्ट्रेस वैल्यूज कैसे मिलेंगे. तो मैं क्या करूंगा, ये P1 का जो लेंथ है ये मैं मेजर करूंगा और उसको स्केल से मल्टीप्लाई करूंगा. लेट्स से अगर ये लेंथ मेरा 120 आया, 12 सेंटीमीटर आया, मल्टीप्लाई में मेरा स्केल 10 था, तो 120 MPa इज माय मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस
एंड अगर वो 20 आ रहा है तो 20 into 10 सॉरी 2 into 10 20 विल बी माय मिनिमम प्रिंसिपल माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। बट उसका लोकेशन कैसे पता चलेगा? एंगल। तो एंगल के लिए क्या करेंगे, ऑल द एंगल्स वी आर गोइंग टू मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। तो ये CD है ना, ये हमारा एंगल मेजरमेंट के लिए ओरिजिनल लाइन है। दिस CD, ऑल द एंगल शुड बी मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू CD, all the angles must be measured with respect to CD. CD हमारा बेस लाइन है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेस लाइन, ओके। तो अभी तुम क्या करोगे, ये एंगल मेजर करोगे, बिकॉज तुम्हारा प्रिंसिपल प्लेन कौन से प्लेन पे है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है ना। यू आर गोइंग टू मेजर दिस एंगल एंड ये एंगल तुम्हें देगा 2 θ1 का वैल्यू, इसका वैल्यू देगा 2 θ1 एंड यू नो दैट θ1 क्या होता है, θ1 है तुम्हारा माइनर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू, ठीक है। तो यू विल मेजर तुम्हारे जो भी एंगल मेजर होगा, प्रोट्रैक्टर होगा, उससे तुम ये 2 θ मेजर करोगे और उसको लिखोगे 2 θ1। once you know 2 θ1 you can get θ1 and once you know θ1 you can get θ2 as θ1 plus 90, और एल्स अगर तुमने ये 2 θ1 का है, उसके बाद माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस देखो इधर से इधर तक मेजर करोगे तो और 180 ऐड करोगे ना, और 180 मतलब डबल एंगल। मोर सर्कल में जो भी एंगल मिलता है वो डबल होता है। हमारे फॉर्मूला में ही देखो तुम sin 2 θ cos 2 θ डबल एंगल से, समझा क्या वो डबल एंगल में क्यों कन्वर्ट किया था? मोर सर्कल वो फॉर्मूलास के हिसाब से बनाए हैं, ओके। sin 2 θ एंड cos 2 θ, इसलिए जो भी एंगल मिलेंगे 2 θ के टर्म्स में मिलेंगे। 2 θ और उसको हाफ करोगे तो तुम्हें एक्चुअल एंगल मिलेगा कि कौन से कहाँ पे प्लेन वो मैक्सिमम है। अगर 2 θ का वैल्यू तुम्हारे यहाँ पे 50 आता है तो मतलब तुम्हारा जो एक्चुअल बेस लाइन है वहां से 25 डिग्री पे ही मेजर प्रिंसिपल प्लेन है, ओके। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, sir. Did you understand how to get principal stress and how to get the Yes, sir. location of principal planes? Yes, sir. Yes. Now how to get what is the next thing? Maximum shear ना? Sure. मैक्सिमम शेयर। कैन यू टेल मी ये मोर सर्कल में अगर मैंने कोई भी एक पॉइंट पी लिया, लेट्स से दिस इज माय पॉइंट पी ऑन द मोर सर्कल, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट माय नॉर्मल स्ट्रेस एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट माय शियर स्ट्रेस, बराबर ना। तो अगर मैं पॉइंट पी यहाँ पे ये करता हूँ, ठीक है, और पॉइंट पी से इधर तक का डिस्टेंस मेजर करता हूँ, लेट्स से अगर मैंने पॉइंट पी यहाँ पे लिया और ये पॉइंट पी जनरल पॉइंट है, ये पॉइंट को अगर मैं ई से ज्वाइन करता हूँ, ओके, तो ये है मेरा एंगल उसका 2 θ। 2 θ मतलब समझाता हूँ मैं, बस तुम्हें समझ में नहीं आ रहा रहेगा। आई एम गेटिंग इनबिल्ट फीलिंग की लोगों को समझ में नहीं आ रहा, ओके। लेट्स से जैसे मेरे यहाँ पे बीसी एक प्लेन है, कुछ एंगल थीटा पे है, मुझे ये बीसी प्लेन लोकेट करना है मोर सर्कल पे। तो मैं क्या करूंगा बीसी प्लेन लोकेट करने के लिए, ये मैं मोर सर्कल लूंगा, ये जो सीडी लाइन है उससे एंगल मेजर करना चालू करूंगा, बिकॉज ऑल दी एंगल शुड बी मेजर्ड विद रिस्पेक्ट सीडी। सीडी से मैं कौन सा एंगल मेजर करूंगा? 2 θ एंगल मेजर करूंगा, थीटा नहीं। थीटा अगर चाहिए तो 2 θ मेजर करो, 2 θ मेजर करूंगा और यहाँ पे एक लाइन बना दूंगा। वो लाइन पी पे इंटरसेक्ट अगर होता है तो पी है मेरा पॉइंट। ये पी का अगर मैंने यहाँ से डिस्टेंस मेजर किया, अगर पी का मैंने यहाँ से डिस्टेंस मेजर किया तो मुझे वैल्यू मिलेगा वो जो प्लेन है उस पे सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस कितना है, एंड अगर ये वर्टिकल डिस्टेंस मेजर किया तो मुझे वैल्यू मिलेगा उसका शियर स्ट्रेस कितना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो अभी कोई भी प्लेन कोई भी एंगल तुम्हें देने तो यू कैन लोकेट ऑन द मोर सर्कल एंड यू कैन गेट इट। once you draw the Mohr circle for a particular application of stresses, you can get the any value you can get the normal and shear stress values at any on the plane, any of the plane, is it not? समझा? Yes, sir. एक ही चीज बचा हमारा कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कैसे मिलेगा। मैक्सिमम, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मतलब क्या? यहाँ पे शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है, शेयर स्ट्रेस मतलब क्या? यहाँ पे वाई एक्सिस, मुझे बताओ कौन से पॉइंट पे वाई एक्सिस मैक्सिमम है? तो देखो ये टॉपमोस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल, राइट? At this point the tau is maximum and at this point it is negative maximum। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बराबर ना? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आता है, हमें फॉर्मूला के हिसाब से भी पॉजिटिव नेगेटिव आया था। तो दिस इज योर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो मुझे बताओ ये स्ट्रेस पे, ये जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है, तो नॉर्मल स्ट्रेस वहां पे जीरो है क्या? नहीं है। नॉर्मल स्ट्रेस का देखो यहाँ से मेजर किया तो एक्स एक्सिस है उसका जीरो, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस जीरो कब आएगा? जब ये वाई एक्सिस पे आएगा कोई पॉइंट। तो नॉर्मल स्ट्रेस जीरो नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो।
ओके हाँ, एंड हाउ टू गेट द लोकेशन ऑफ दिस प्लेन? तो ये है हमारा प्लेन ना, ये टाउ मैक्सिमम टू माइनस वाला, ये जो येलो लाइन मैंने ड्रॉ किया वो है मेरा मैक्सिमम शियर प्लेन। उसका लोकेशन अगर मेजर करना है तो यू विल हैव टू मेजर यहाँ से लेके ये एंगल, यहाँ से लेके सॉरी ये एंगल, अरे अंडरस्टैंडिंग इट? और ये एंगल क्या होगा मेरा, ये एंगल मैं अभी बड़ा बना देता हूँ, ये एंगल होगा मेरा 2θ3। व्हाट इट, वाई थीटा 2 टाइम्स क्यू है बिकॉज मेरा एंगल सब डबल है यहाँ पे, और थीटा 3 क्यू बिकॉज मैं वो एंगल शेयर प्लेन के एंगल को θ3 बोलता हूँ। तो एक बार मुझे 2θ3 मिल गया, उससे मैं निकालूंगा θ3 और मेरा θ4 जो होता है वो θ3 + 90 होता है, बराबर ना? समझा क्या सबको ये मोर सर्कल मेथड? Yes, sir. Now tell me which one is better to solve with formulas or going with this Mohr circle? Yes. कोई ओपिनियन नहीं है चैप्टर ऑप्शन में? Sir, दोनों एक बार ट्राई करना पड़ेगा फिर अच्छे से समझेगा। Okay. So fine. So shall we stop here? And you can practice this whatever we have discussed, and then you can Yes, sir. next time solve multiple numericals, different cases. Yes, sir. Okay. Is there any doubt till now? You have? No. Nobody? No, sir. Fine. If there is no doubt, we will stop here, and next time we will continue. सर वो एंगल मेजर करने का प्रोसीजर एक बार फिर से बताओ। Which angle? All the angles should be measured with respect to CD. Okay, ये जो मेरा CD लाइन है बेस लाइन है, ठीक है? हाँ, अभी अगर मुझे बोला कि फॉर एग्जांपल यू फाइंड आउट तुम्हारा जो एक स्ट्रेस सिस्टम है, ठीक है, ऐसा मुझे एक स्ट्रेस सिस्टम दिया था, एंड ये एक मिनट, हाँ, ये स्ट्रेस सिस्टम में मुझे बोला कि एक ऐसा कोई प्लेन है बेस इससे जो एंगल 50 डिग्री पे, एंड यू फाइंड आउट द नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस ऑन दैट प्लेन। तो अगर ये 50 दिया तो व्हाट आई विल डू, बेस लाइन से मेजर करना चालू करूंगा और कितना एंगल मेजर करूंगा 100, और 100 जहाँ पे आता है उधर वो मैं लाइन बनाऊंगा, तो वो हो गया मेरा प्लेन। उधर मैं क्या करूंगा, स्ट्रेसेस फाइंड करूंगा। एक नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा मेरा, शियर स्ट्रेस। समझा? यस सर। अरे सिग्मा वाई का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सिग्मा ए से कम आएगा ऐसा जरूरी नहीं है ना? तो मैंने अज्यूम किया ना, पहले लिखा है देखिए। अच्छा हाँ, सॉरी। अगर नहीं होगा तो बाहर आएगा, वो मेरा ए होगा और ये बी होगा। हाँ ठीक है, वो तो वैल्यूज दिया रहेगा तब मुझे पता रहेगा ना। अगर वो नेगेटिव भी है सिग्मा वाई तो वो बी पॉइंट इधर आएगा, ये साइड। हाँ ओके ओके सर, समझ गया, वो देखा नहीं था। ओके, यस, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Okay. यस सर। Okay, fine. So thank you. We will stop here.